everyone. Now we are going to discuss a very important topic from this chapter, and that is structure of nucleosome, or you can say it as a nucleosome model, right? See, when we talk about DNA, then there are certain things to be thought of. As we already discussed, DNA in human genome is actually 2.2 meters. Okay, 2.2 meters means such a long DNA in one genome. One genome means haploid set of chromosome. It means in 23 pairs of chromosome there is 2.2 meter long DNA. So DNA in human genome is 2.2 meters, and in human genomes we already know the base pairs are about 3 billion. Okay, and between the two base pairs the gap is about 3.4 angstrom. So this information was given by Watson and Crick when they gave their double-stranded helical structure of DNA. Then at that time they told that a DNA of human genome is having about 3 billion of base pairs. Base pair means that you do the pairing, adenine pairs with thymine, cytosine with guanine. That is base pairing. So those base pairings are about 3 billion in number in one human genome. And between the two base pairs the gap is of 3.4 angstrom. This detail we already discussed while we were discussing the double helical structure of DNA. So when it was calculated by the data which Watson and Crick gave, it came out to be the length of DNA as 2.2 meters. Now we know the cell is very small, right? And the nucleus is inside the cell. And in that small nucleus, how can you think that a long DNA of 2.2 meter is fitted? This was a big question, right? So imagine a cell we cannot see, a single cell we cannot see from eyes. इतनी छोटी होती है कि हम उसे आंखों से नहीं देख सकते. And the nucleus is inside the cell. और उस न्यूक्लियस के भी अंदर जो है क्या प्रेजेंट है? DNA प्रेजेंट है. तो जब हमें सेल ही नहीं दिखती तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो सेल से भी छोटा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस से भी छोटा है. इजंट इट? तो जब हमें सेल ही नहीं दिखती तो डीएनए इतना लंबा कैसे है? जब हमें सेल नहीं दिखती और डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कैसे इतना लंबा है 2.2 मीटर? और कैसे एक छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस में इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए अकोमोडेट करता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन था. So the answer of this question will be given by this topic. And ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो है एक छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द वे ऑफ पैकेजिंग. इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स भी लिखा है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द डीएनए इज पैक्ड इन अ सेल ऑफ यूकैरियोट. ओके, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज वुडॉक. He said there are repeated thickenings in chromatin fiber when we draw chromatin fiber. अगर हम एक chromatin fiber बनाते हैं तो उसमें ऐसे जो है हमें thickenings देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो इन thickenings को उन्होंने न्यूक्लियोसोम कहा, right? And when this chromatin starts forming chromosome, जब ये chromatin fibers जो है, आपने सेल डिवीजन के समय chromatin fibers नाम सुना होगा, तो इन chromatin fibers से जब chromosomes बनने शुरू होते हैं तो क्या होता है? थिकनिंग्स दिखाई देती हैं, जिनको ही न्यूक्लियोसोम कहा गया. The term nucleosome was given by Audet, O-U-D-E-T. Each nucleosome is made up of histone octamer. Octa means 8 and mer means unit. So every nucleosome, एक न्यूक्लियोसोम कितने से बना था? 8 हिस्टोन से. And DNA is wrapped around it, right? I will show you how this happens. First, let us discuss certain points. So nucleosome, if we talk about nucleosome model, each nucleosome has histone protein. हर एक nucleosome में histone protein होगा. This protein is rich in lysine and arginine. Okay, so lysine and arginine are present in the what? These histone proteins. Next is, these histone proteins are positively charged and DNA is negatively charged. You just read the points and then I'll tell you how the nucleosome model is made. Okay, these 4 histone proteins are H2A, H2B, H3 and H4. So how many histone proteins are there? 4 types of, but in total number they are 8. Okay, I'll make this point clear. What I said,
4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, मगर टोटल हिस्टोन्स 8 होते हैं क्योंकि सबके 2-2 होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर 2 इन नंबर, यानी 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं H2A, मगर ये कितने होंगे H2A? 2 होंगे। H2B दूसरे तरह का प्रोटीन, ये भी 2 होंगे। H3 तीसरे तरह का प्रोटीन, ये भी 2 होंगे। और H4 चौथे तरह का प्रोटीन, ये भी 2 होंगे। तो 4 पेयर्स हैं और सब के सब 2-2 बार है, तो 4 2 जा 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। Now you see this is the nucleosome model and it is called as V8 और NU bodies। इसको V8 या NU bodies भी कहा जाता है। अब जो आपने ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स बताए थे H2A, H2B, H4 एंड H3, इनका अरेंजमेंट देखें इस डायग्राम में, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। पहले मैं इसमें समझाती हूँ, फिर मैं आपको एक एक्टिविटी करके बताऊंगी जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है H2A, इसके बाजू में एक दूसरा हिस्टोन प्रोटीन H2B, फिर H3, H4, और अगर ये दिख रहा है तो एक ब्लैक कलर से मैंने H2A के ऊपर फिर से H2A लिखा है, ये सर्कल बना के, फिर H2B के नीचे एक और H2B, H3 के नीचे एक और H3 और H4 के नीचे एक और H4, और फिर ये पिंक कलर का थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको जो इसके चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है। तो ये डीएनए है जो पिंक कलर का बना हुआ है, वो डीएनए है जो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ लपेटा हुआ है, ठीक है। और इसे कोर डीएनए या जो है लूप डीएनए भी कहते हैं क्योंकि इसने यहाँ पे एक लूप बनाया है। नाउ यू सी, ये जो लूप है डीएनए का, इट इज हैविंग H1 प्रोटीन, ये H1 प्रोटीन से बना होता है और ये क्या करता है, इन पूरे के पूरे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को बाइंड करके लपेट के रखता है एक साथ। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है आपके पास, एक तो हिस्टोन ऑक्टामर है, ये 8 यूनिट्स, साथ में डीएनए है, कोर प्लस लिंकर डीएनए। तो ये जो एरिया है वो कोर डीएनए कहलाता है जिसमें लगभग 146 बेस पेयर्स होते हैं, और ये लिंकर डीएनए जो यहाँ बाहर की तरफ निकला है इसे कहते हैं लिंकर डीएनए, इसमें 60 बेस पेयर्स होते हैं। अब आपका ये जो अरेंजमेंट है 8 हिस्टोन का वो मैं आपको समझा देती हूँ। मान लेते हैं, देखे यहाँ से थोड़ा दूर रखते हैं, जैसे ये समझ आए H2A, ये एक H2A है, मेरे पास 4 अलग अलग कलर के कॉइन्स नहीं है लेकिन जो भी है उनसे आई होप आप समझ जाएंगे। तो एक ये कॉइन H2A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाजू में मैंने एक और कॉइन रखा, ये H2B को रिप्रेजेंट कर रहा है, H2A, H2B, H2A, H2B। H2A के नीचे H3, ये रहा H3, और H2B के नीचे H4, ठीक है। ये हो गए आपके 4 हिस्टोन, ठीक है। H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, 4 हो गए। अब आपने बोला कि सबका 2-2 है, तो 2-2 है तो क्या होना चाहिए था, सबका कलर सेम होना चाहिए था, पर मैं जो है आपको एक दूसरे कलर से दिखा के बताती हूँ कि क्या है। तो ये H2A आपके नीचे की लेयर का और इसके ऊपर एक और H2A ऐसे रखा होता है। हम दोनों ब्लैक लेते तो आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने एक H2A को ब्लैक ले लिया, एक को जो है व्हाइट ले लिया। तो ये हो गए आपके 2 H2A, एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं। फिर बाजू में आपने लगाना है H2B, H3 के ऊपर H3 और H4 के ऊपर H4। तो अभी कितने हो गए टोटल 8। नीचे के 4 H2A, H2B, H3, H4 ब्लैक वाले, और ऊपर के 4 H2A, H2B, H3, H4, ये टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए आपके। तो एक लेयर इन 4 की नीचे है ब्लैक वाली और उसके जस्ट ऊपर एक और लेयर है। अब मान लें कि हम कोई थ्रेड लें और उस थ्रेड को ऐसे लपेट दें इसके चारों तरफ, तो वो ये डीएनए है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन ऐसे रखे रहते हैं आजू बाजू, 4 नीचे फिर 4 उनके ऊपर सेम टू सेम, और फिर इनके चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे धागा अगर लपेट दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा लगेगा कि धागे में क्या हुए हैं, मोती लपेट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स, और इमेजिन करें कि यहाँ से थ्रेड लिपटा हुआ है, तो जितना थ्रेड इनके चारों ओर गोला बनाएगा उसे कहेंगे कोन डीएनए। क्या कहेंगे, कोर डीएनए। और जितना धागा इधर और इधर बाहर निकला रहेगा उसे कहेंगे लिंकर डीएनए, क्योंकि लिंकर डीएनए क्या करेगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ है, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, क्योंकि ये जो आपने थिकनिंग्स बताई थी, ये थिकनिंग्स यही है, उस धागे के ऊपर ये रखे हुए हैं।
फिर थोड़ी दूर चल के आएंगे तो फिर ऐसे 8 रखे होंगे, फिर थोड़ी दूर बाद फिर ऐसे 8। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं एक डीएनए के ऊपर, और यही हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो आपको यहाँ पर थिकनिंग्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है? आई होप आपको समझ आ गया कि हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, जैसे 8 ऑक्टामर मैंने आपको बना के बताए थे, प्लस डीएनए कोर एंड लिंकर, तो डीएनए उनके चारों तरफ ऐसे लिपटा होता है। तो ये जो है न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाता है। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम मॉडल। नाउ यू सी core DNA is 1:3/4 or you can say 1.75 turns around the histone octamer, यानी पूरे डीएनए का 1.75 पोर्शन क्या होता है? कोर डीएनए का होता है। ठीक है, कोर डीएनए मतलब ये जो गोल गोल घूमा रहता है वो वाला पार्ट। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट H1 प्रोटीन इट कीप्स ऑल 8 हिस्टोन टुगेदर। तो H1 प्रोटीन जो है इन सबको एक साथ बाइंड करके रखता है। सो दिस वाज द न्यूक्लियोसोम हुज कॉम्पोजिशन इज दिस, and this was the structure of nucleosome, and we can say packaging of DNA in eukaryotes. So I hope the nucleosome model is clear to you and you have understood कि how due to such kind of packaging, close packaging, such a big 2.2 meter long DNA can be accommodated in a small cell. So thank you for watching. I hope this was clear.